Hi, I am Syed Rashid from Ahle-Vaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahle-Vaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our class 10th physics chemistry lesson number 11 principles of metallurgy. In our previous session we have learned about the basics of metallurgy, what is mineral, what is ore, what is alloy, as well as we have learned about the properties of metal like malleability, ductility, etc. And as well as I have in the last few minutes of my previous lecture, I wrote three things like to purify our metals we have three main processes with us like concentration or dressing of the ore. Next is extraction of crude metal. After extraction of crude metal we will have like purification of crude metal. In these three different three big processes we have again divided into few more processes, like as you can see on the board is in concentration and dressing we have four main processes like hand picking, washing, fourth floating and magnetic separation. So we will going to learn this thing in separate as well as in detail. हम ये पूरा separately अलग अलग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे. तो जैसा कि आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ, फिज़िक्स टीचर और लेक्चरर ये ऑर्गेनाइजेशन में. हम हमारा जो 11th चैप्टर फिज़िक्स केमिस्ट्री क्लास 10th का पढ़ रहे थे उसी में हम आगे की टॉपिक पढ़ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो प्रोसीजर रहेगा, अभी मैं इंग्लिश में आपको रीड कर दूंगा थियरी पार्ट. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द थियरी पार्ट विच आई हैव रेड इन इंग्लिश इन हिंदी लैंग्वेज. ठीक है, जो मैं पढ़ा था इंग्लिश में वो हिंदी में समझा देता हूँ, सिंपल. सो लिसन केयरफुली. Concentration or dressing of the ore. Ores that are mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurity such as soil and sand, etc. Concentration or dressing means simply getting rid of as much of as the unwanted rocky materials as possible from the ore. The impurities like sand and clay are called gangue. Here we should get as far as pure or more concentrated ore. Enrichment, concentration of the ore. Various physical methods are used to enrich the ore. In many cases, it is possible to separate the metal compound from the unwanted rocky materials by physical means. An example for this is fourth flotation. The physical method adopted in dressing of the ore or enriching of the ore depends upon difference between physical properties of ore and gangue. So now the time to explanation. Now I want to explain this thing. In while I was reading, we got one word named as gangue. So in exam it might ask you what is gangue. So for gangue you have a simple definition like the impurities in the ore like sand and clay are called gangue. You can write this like this. This is gangue. I think I am going to write this definition also. As you can see, I wrote the definition also. It is very small and very important. The impurities in ores, you can write here plural form also. Ores like sand and clay are called gangue. So अभी जो मैंने concentration और dressing पढ़ा था उसमें एक important word आया था जिसको हम gangue कहते हैं. तो ये आपको कभी पूछ सकता, तो आप 1 या 2 मार्क्स में इसको लिख सकते हैं. अभी जो impurities से रिलेटेड है हमारा और का, तो उसको हम पहले जब प्यूरीफाई करेंगे ये मेथड्स का यूज़ करेंगे. तो देखिए पहले क्या है हमारे पास, जो ओर रहता है जो हमको अर्थ क्रस्ट से हासिल होता निकलता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ रहती और वो इम्प्यूरिटीज़ यूजुअली मट्टी और रेती हो सकती. उसके साथ साथ दूसरे चीज़ें भी रह सकते. तो कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग उस चीज़ को कहते हैं कि ये जो आपका अनवांटेड रॉकी मटेरियल्स है एज पॉसिबल एज जितने ज़्यादा हो सके साफ़ कर देना चाहिए. ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या होगा, एक थोड़ा सा मोर प्योर यानी कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड और प्योर और मिलेगा. फिर इस और को हम वेरियस प्रोसेसेस में लगाते. ज़्यादातर हम प्रोसेसेस में फोर्थ फ्लोटेशन का यूज़ करते हैं. उसके साथ हैंड पिकिंग, वॉशिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन भी रहता है. अब जो है डिपेंड करेगा कि हम कौन सा प्रोसेस ये चारों में से पिक करेंगे. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोसेस हमको इसमें करना है. सो पहले हैंड पिकिंग, वॉशिंग, फोर्थ फ्लोटेशन एंड magnetic separation.
hand picking. If the ore particles and the impurities are different in one of the properties like color and size etc., using this property the ore particles are hand picked, separating them from the other impurities. देखिए अगर ठीक है कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टीज रहते जैसा कि उसका कलर है और साइज है, ठीक है, अलग अलग कलर है और अलग अलग साइज है समझिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करके हम क्या करेंगे, उसको हाथ से अलग कर लेते। अब आपको एक सवाल उठता होगा, सर हमारे पास और थाउजेंड्स ऑफ केजीस रहता तो हाथ से सेपरेटली हम कैसा करेंगे? तो उसके लिए आपको जब थाउजेंड्स ऑफ केजी अगर और रहा तो हंड्रेड्स ऑफ उसमें वर्कर्स भी रहते। नेक्स्ट हमारा मेथड है वॉशिंग। ओके, वॉशिंग की अगर हम बात करेंगे तो और पार्टिकल्स आर क्रश्ड एंड केप्ट ऑन दी slopy surfaces. They are washed with controlled flow of water. Less densive impurities are carried away by the water flows, leaving the more densest ore particle behind. ये यहाँ पे क्या होता है, सब में पहले हम और जो रहता है उसको क्रश कर देंगे, दबा देंगे, दबा देने के बाद या फिर टुकड़े कर देंगे, एक स्लोपी सरफेस पे उसको लगा देंगे। जो और रहता उसको कुछ इस तरीके की स्लोपी सरफेस पे लगा देंगे, तो ये और जो है ऐसा बहेगा और ये और के साथ हम क्या करेंगे, पानी को भी डालेंगे, कंट्रोल वाटर डालेंगे, हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लाइट पार्टिकल्स रहते वो बह के चले जाते फ्लो होके, और जो डेंस जो सख्त पार्टिकल्स रहते वो नीचे की तरफ रह जाते। तो ये एक हमारा मेथड है यानी कि वॉशिंग करने का। तो इससे हमारे दो हैंड पिकिंग और वॉशिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन किसको कहते हैं? This method is mainly used for sulfide ore which have no wetting properties, whereas the impurities get wetted. The ore with impurities finely powdered and kept in water taking in a float cell. यहाँ पे क्या होता, ये जो फोर्थ फ्लोटेशन है यूजुअली हम सल्फाइड के ओर्स को करेंगे। तो सल्फाइड्स के ओर के अंदर मेनली वेटिंग यानी कि कच्चे होने के प्रॉपर्टीज़ नहीं रहते, लेकिन उसके जो ओर के साथ जो दूसरे इम्प्यूरिटीज़ रहते वो लोग कच्चे हो सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे एक यानी कि उसको पूरा पाउडर कर लेंगे, वो जो और रहता पाउडर करके उसको फोर्थ फ्लोटेशन के सेल के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद क्या करते सुनिए, एयर अंडर प्रेशर इज ब्लो टू प्रोड्यूस फोर्थ इन दी वाटर। फोर्थ सो प्रोड्यूस टेक्स द ओर पार्टिकल्स टू द सरफेस वेयर एज द इम्प्यूरिटी सेटल एट द बॉटम। फोर्थ इज सेपरेटेड एंड वॉश टू गेट ओर पार्टिकल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि फोर्थ फ्लोटेशन में जैसा ही हम पीस के डाल दिए, पानी के अंदर डाल देंगे, डाल के उसको एक एयर प्रेशर के हिसाब से हल्लू हल्लू उसको इम्प्यूरिटीज़ जो रहते वो क्या हो गया, यूजुअली नीचे की तरफ जम जाते पूरे इम्प्यूरिटीज़, और जो प्योर चीज़ें हमको चाहिए, प्योर मेटल्स या प्योर मटेरियल चाहिए, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अभी हमारा हैंड पिकिंग वॉशिंग फोर्थ फ्लोटेशन हो गया। अभी जो मैं तीन चीज़ें आपको समझाया था पढ़ के, मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें से नोट्स बना सकते या पूरा आप याद रख सकते। नाउ द टाइम टू सी दी हैंड पिकिंग वॉशिंग फोर्थ फ्लोटेशन थियरी पार्ट ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the theory part related to these three things. Now the time to learn our fourth thing like magnetic separation. For that, look at the screen. I am placing a image on the screen as you can see. Magnetic separation. If the ore or impurities, one of them is magnetic substance and the other non-magnetic substance, they are separated using electromagnet. See figure 2. जैसा कि आप डायग्राम फिगर नंबर 2 में देख सकते, अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रहा और एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रहा, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से सेपरेट कर देते। जैसा कि आप देख सकते कि ओर में दो टुकड़े हो रहे हैं, एक राइट साइड की तरफ चल जा रहा आपके जो मैग्नेटिक ओर कह रहा, और जो लेफ्ट साइड की तरफ चल जा रहा वो नॉन मैग्नेटिक ओर हो रहा। इसी स्क्रीन पे आप देख सकते फिगर नंबर 1, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फाइड ओर। तो हमने फोर्थ फ्लोटेशन का जो याद पढ़ा था उसका डायग्राम भी आपके स्क्रीन पे है। मेक श्योर स्टूडेंट दिस 2 डायग्राम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेक श्योर ये डायग्राम्स को आप ड्रॉ करिए, ट्राई टू ड्रॉ 2 टाइम्स। नाउ अब आप मेरे को देखिए। सो उम्मीद करता हूँ जो स्क्रीन पे मैं लगाया था आपको 2 डायग्राम्स था, मैग्नेटिक सेपरेशन का कंप्लीट पार्ट था। तो अभी आपको मैग्नेटिक सेपरेशन का कंप्लीट पार्ट कॉपी कर लेना है, साथ ही साथ जो 2 डायग्राम्स मैं आपको बोला हूँ वो 2 टाइम ड्रॉ करना है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो उम्मीद करता हूँ
कि आपने वो डायग्राम्स ड्रॉ करे होंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलना था, यहाँ पे राइट साइड में भी बोर्ड रफ करने से पहले मैं गैंग्यू बोल के एक डेफिनेशन लिखे हुआ था, वो भी आपको लिख लेना है, ठीक है। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न नेक्स्ट थिंग। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द ओर लर्न करेंगे, तो लिसन केयरफुली। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द ओर। Extraction of the metal from its ore depend on the reactivity of the metal. To understand the order of reactivities of the metals that are very familiar, we study their chemical reaction with cold water, steam, dilute, strong acids and chlorine. And based on these vigorous activities ordered in this reaction, we frame our activity series. Arrangement of the metal in decreasing order of their reactivity is known as activity series. See table 4. Reduction of purified ore to the metal. The method used for a particular metal for the reduction of its ore to the metal depends mainly on the position of the metal in activity series. अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल की हम बात करेंगे, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल जो है डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों से, कोई एक मेटल है ना उसको स्टडी करें, क्या क्या चीज़ों से। पहले उसको कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराए, ओके। उसके बाद हम कोल्ड वाटर के बाद क्या करें, इसको स्टीम से रिएक्ट कराए। स्टीम यानी एक किस्म की भाप होती है। फिर स्टीम के बाद हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराए, STRONG, स्ट्रॉन्ग ACID। फिर उसके बाद हमने इसको क्या करें, डाइल्यूट, DILUTE, डाइल्यूट एसिड से हम इसको रिएक्ट कराए। फिर उसके बाद हम क्लोरीन गैस से Cl2, इसको हम क्या बोलेंगे, CHLORINE, क्लोरीन होता है। ये चीज़ों से रिएक्ट कराए। रिएक्ट कराने के बाद क्या करें, एक उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हम एक टेबल बनाएं जिसका नाम है टेबल 4, ओके। टेबल 4 नाम है, बना के उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से हम कौन सा मेथड उसको अप्लीकेबल करना है हम अप्लाई करते हैं। नाउ द टाइम टू सी दिस टेबल 4। ये टेबल 4 आप आपके स्क्रीन पे देखिए। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये टेबल 4 के बारे में आपको एक्सप्लेन यानी समझा भी देता हूँ, ओके। ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एज यू कैन सी दी टेबल 4 ऑन योर स्क्रीन। आप आपके स्क्रीन पे टेबल 4 देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं आपको। फर्स्ट कॉलम्स में आपको मेटल्स बताया जा रहा, सेकेंड कॉलम में एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड कॉलम में आपको रिएक्शन विद कोल्ड वाटर बताया, फिर उसके बाद फिफ्थ कॉलम में रिएक्शन विद स्टीम बताया, इसके बाद के कॉलम में आपको रिएक्शन विद डाइल्यूट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उसके बाद आपको बताया रिएक्शन विथ क्लोरीन ऑन हीटिंग। ये पूरे रिएक्शंस आपको बताए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेटल्स में आपको पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, Ag यानी कि सिल्वर है, Pt प्लैटिनियम है, Au गोल्ड है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर पोटेशियम और सोडियम को हमने एक्शन किया किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या हुआ बताया जा रहा। सेम केस अगर इसी को हमने कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा तो क्या हुआ, इसी को हमने रिएक्शन स्टीम से करे तो क्या हुआ, इसी को हमने रिएक्शन करे स्ट्रॉन्ग एसिड से, साथ ही साथ हम रिएक्शन करें इसको क्लोरीन विथ हीटिंग, ये क्या क्या हुआ वो आपको बताया। और आप बहुत कुछ देख सकते हैं टेबल 4 में। आपको चाहिए कि ये टेबल 4 थोड़ा सा कॉपी कर ले, कॉपी करके इसको रीड करिए, यू ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आपने कॉपी कर लेके रीड कर लिया टेबल 4 को। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो आप ऑनलाइन में जब भी हमारी क्लास हो रही है आप हमारे से पूछ सकते। तो देखिए अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि हमारे पास फर्स्ट वाले में 4 अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस थे। कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग में हैंड पिकिंग था, फोर्थ फ्लोटेशन था, साथ ही साथ आपको वॉशिंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन था। इसमें जो पहला जो रहेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट टॉप लेवल सीरीज, जो ऊपर की इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं आपको। मैं ये आई थिंक ब्लू मार्कर से बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट उसका पॉइंट नंबर ए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम। सिंपल chemical reduction method like heating with carbon monoxide etc. to reduce the ores of this metal are not feasible. The temperature required for the reduction is too high and more expensive. To make the process economical
electrolysis method are to be adopted, again the electrolysis of their aqueous solution also is not feasible, because water in the sodium would be discharged at the cathode in the preference to the metal ion. The only method available to extract these metals by electrolysis of these fused compound, for example, to extract sodium from sodium chloride, fuse sodium chloride is electrolyte with steel cathode and graphite anode. The metal sodium will be deposited at cathode and chlorine gas liberated at the anode. At cathode, 2Na plus 2E minus give rise to 2Na. At anode, 2Cl minus give rise to Cl2 plus 2E minus. For the above electrolysis, a large quantity of electricity is required. To keep the ore in molten state, suitable impurities are added to the ore to decrease its melting point. जैसा कि मैं रीड कर रहा था इंग्लिश में, आपको स्क्रीन पे भी लगा दिया था, आपको थ्योरी पार्ट की तो कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए क्योंकि पूरा आप देख रहे थे मैं पढ़ते हो। अब मैं थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो हम रीड करें, तो अगर हिंदी में एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो कुछ मेटल्स हैं हमारे पास, जैसा कि मैं थोड़ा सा फुल पढ़ा था नाम, सोडियम यानी के आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद Na बोल तो सोडियम होता है, कैल्शियम बोल तो Ca होता है, मैग्नीशियम बोल तो Mg होता है, और एक एक हमने देखा था एल्यूमिनियम। ठीक है, ये पूरे मेटल्स है। ये मेटल्स क्या रहते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत तेज़ विग्रस रहती है इनकी रिएक्टिविटी। तो हम इसको डायरेक्ट रिडक्शन रिएक्शन पे डाल सकते हैं। रिडक्शन रिएक्शन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, सी से कार्बन है, CO से कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब मैं रीड कर रहा था इंस्टेड ऑफ C कार्बन बोला था, इंस्टेड ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड बोला था, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही है वो। तो पहला मेथड क्या है, रिडक्शन कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, ReducTiON। लेकिन इसके साथ हम रिडक्शन करेंगे तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं रहता, बहुत पैसा खर्चा होता है इसमें। कई को खर्चा होता बोलते, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट रहता। तो हाई TEMPERATURE हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता। फिर इस प्रोसेस को हम थोड़ा इकोनॉमिकल बनाने के लिए एक और प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम है ELEC, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस का ELEC TROLYSIS का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये आ रहा हमको, जो सोल्यूशन है वो चिकना यानी कि वाटर के जैसा वाटर से मिले हुआ रहता, तो ये भी फीजेबल नहीं होता। तो फाइनली हम और एक मेथड रहता, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्यूज कंपाउंड, यानी कंपाउंड को फ्यूज कर डालते, फोड़ देते कुछ उस तरीके से। तो उस तरीके से हम रिएक्शन करते। तो इस रिएक्शन में यूजुअली क्या होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक रिएक्शन होता 2Na प्लस, ठीक है, Na को प्लस 2E, इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते या, तो इस तरीके से आपको बनता है इक्वेशन उसका 2Cl माइनस गिव राइज टू Cl2 प्लस 2E माइनस। इस तरीके के रिएक्शन से आपको ये सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और वेरास जो आपका यानी कि क्लोरीन गैस है वो लिबरेट हो जाएगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको यानी कि क्योंकि ये भी प्रोसेस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम रखने के लिए हम कुछ सूटेबल इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर ऐड करते ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो। उस तरीके से आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि दूसरे मेटल्स कैसा एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, इस टाइप का मिलते जुलता प्रोसेस यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट मिडिल एक्टिविटी सीरीज। एक हमारा ए में था, ठीक है, टॉप एक्टिविटी सीरीज था, बी में है आपका मिडिल एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूँ। जिंक, आयरन, टीन, लेड एंड कॉपर, द ओर्स ऑफ दिस मेटल्स आर जनरली प्रेजेंट एज सल्फाइड और carbonate in nature. Therefore, prior to reduction reaction of ore of this metal, they must converted into metal oxide. Sulfide ore are converted into oxides by heating them strongly in the excess air. This process is known as roasting. Generally, the sulfide ore are roasted to convert them into oxides before reduction reaction, then to metal. Example 2 PbS plus 3O give rise to 2 PbO
plus 2SO2. The metal oxide are then reduced to the corresponding metal by using suitable reduction agent such as carbon. अब यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज के मेटल्स है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, Zn बोल तो आपको पता ही है, जिंक है, आयरन Fe, इसके Ti टिन है, Pb आपका लेड है और उसके साथ और एक कॉपर है एक्सेट्रा, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं आप। तो इस मेटल्स को क्या करेंगे, सब में पहले ये जो मेटल्स होते हैं यूजुअली दो किस्म के ओर्स में आपको प्रेजेंट रहते, एक सल्फाइड वाले में प्रेजेंट रहते SuLPHIDES और एक OXIDES ऑक्साइड्स, ये दो किस्म के ओर में ये लोग प्रेजेंट रहते। लेकिन अगर हम इसको रिडक्शन रिएक्शन कराना है तो सब में पहले अगर सल्फाइड का भी ओर है तो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते। ऑक्साइड के ओर में कैसा कन्वर्ट करते हैं, इसको हवा में स्ट्रांगली जलाते, बंद करे तो वो सल्फाइड का ओर कन्वर्ट हो जाता ऑक्साइड के ओर में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग, ROASTING। ये जो प्रोसेस है ना ROASTING, व्हाट इज रोस्टिंग बोल के आ सकता है आपको, तो आप आंसर क्या लिखना पड़ेगा, रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स by heating them separately in excess air। इतना सिंपल डेफिनेशन है इसका, ठीक है, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मिडिल लेवल सीरीज। तो इसी सीरीज को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। एज ऑफ नाउ टुडेज सेशन इट इज़ इनफ। Make sure you need to do few things as you are moving to the last chapters of our reader. This last chapters you are learning in your life first time. So you have to maintain notes, listen the lecture more than one time if you have any problem and try to understand. If you have any doubt you can ask online. जैसा कि आप आपकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले नोट्स मेंटेन करिए, मेरा लेक्चर एक से ज़्यादा मर्तबा सुनिए। अगर कुछ डाउट्स है आपको तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं या रीडर रिफ़र कर सकते हैं। आप ये स्टेप्स लोगे तो ज़रूर आपको समझने आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर विथ डिफरेंट टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव ए ग्रेट टाइम, टेक केयर। यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल अहलेवैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आई एम सैयद राशिद, teacher and lecturer in this organization. Thank you.